Okay, so let us start our new topic, lines parallel to the same line. Okay, okay. Now tell me, if two lines are parallel to the same line, will they be parallel to each other? Right. For that, you are having one theorem that is called your theorem 6.6. Okay, let us check how we can prove this. If they are parallel, then how we can prove? If not, then also how we can prove. So your theorem states that lines which are parallel to the same line lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Exactly, you can extend this property to more than two lines also. Right. Now tell me how we can prove this. Okay, for that, suppose I am taking three different lines, right? L, M, and N, and I am supposing that line M and N are parallel to L and T be their transversal. Then let us see. Yes. Okay. Suppose this is your line L. Okay. Now let me plot one parallel line. Wait. This is your line M, which is parallel to L. In the same way, let me plot another parallel line. This is your line N, which is also parallel to L. Okay. So here I am taking this three lines L, M, and N such that line M is parallel to L and line N is parallel to L. Okay. Now I am taking one transversal. Suppose this is your transversal T. Transversal T. I will take help of this transversal to prove that these two lines are parallel to each other as well. Okay, it is very easy. You can take help of any two angles, right? Either you can take corresponding angles, or you can take alternate interior angles, or you can take co-interior angles. Okay, so here in given, what I will write here, tell me. What is given data? Suppose line M is parallel to line L and line N is parallel to line L. I am sharing this screen again. Just a minute. Okay, you can hear me, right? Students?
Okay, so line M is parallel L, N is parallel L. Now we need to prove if two lines are parallel to same line, their lines are also parallel to each other, M parallel to N. So let us proceed to proof part. Okay. No, this is theorem 6.6. Okay. So here first we will construct a transversal T for lines L, M, and N. Axiom 1. No, axiom 1 was not about parallel lines, na? Tell me. Axiom 1 was not about parallel lines. So we cannot apply axiom 1, na? Okay. Now you can take any two angles, students, right? Suppose here I am taking corresponding angles. Angle 1, angle 2, angle 3. Yes, you can apply everywhere, but from axiom 1, see what was your axiom 1? See here. If I open your 6.2, right. This is your 9M 6.2, right? No, this was also about your parallel lines. Now, what was your axiom? I think axiom 1 we learned in board, right? Plain board. Now, tell me, what was your axiom 1? Yes. Prahlad, you can unmute yourself and you can tell me. Linear pair axiom, right? So from linear pair, how you can apply that things which are equal to the same things are equal to one another. That is for equal, na? That is for equal. This is not equal. This is parallel, na? Acha, you are telling about Euclid's first axiom. This is about parallel, na? Right? Yes. Okay. Now, so okay. So if I am now, tell me, students, if lines L and M are parallel, M is parallel to L. So it is given that M is parallel L. Now, if M is parallel L, so now focus only on L and M, right? There are these two lines and there is one transversal. So which angles are same over here? Tell me. Okay. This is your L line. This is M. And this is transversal. So yes, angle 1 and angle 2, these two are same or not? Okay, angle 1 and angle 2. Why? What is the reason? Implies angle 1 is equal to angle 2 because corresponding angles. Now, similarly, N is parallel L. Okay. Now, if N is parallel L, so tell me which angles will be same. Now, which lines you need to consider? You have to consider only N and L. So, consider this N and L. N and L. And T be your transversal. Okay. So, which angle are same over here? Just you need to consider N and L. Tell me, 1 and 3 or not? What is the reason? Corresponding angles. Okay. So angle 1 equal to angle 2 and angle 1 equal to angle 3. This is your result 1. This is your result 2.
Right. Now you can apply Prahlad your axiom 1 here. Right. If angle 1 and 2 are same, angle 1 and 3 are same, can I say angle 2 equal to angle 3? From results 1 and 2, angle 2 equal to angle 3. Right. Now if angle 2 equal to angle 3, right, angle 2 and angle 3 are also corresponding angles for M and N as well. So can I say M parallel to N? Yes or no? Okay. So therefore line M parallel to line N, because angle 2 and angle 3 are corresponding angles. So this is our proof part, right? Hence proved. Easy or not? Tell me. Line M parallel to line N. Okay, hence proved. Sir, can we take M parallel L and yes, you can take L parallel. Yes, you can take Navya. Okay, that also true. Is it clear? Okay, please give me reply on host account, right? Not any other account. Okay. Already I have changed your chat setting so that you can chat with host only. Okay. So now, shall we start questions based on it, students? Okay. Shall we start questions based on it? Can you please repeat? Why not? I will repeat. Yes, Janvi. लास्ट क्लास में हमने खेला था क्या काहुट? लास्ट क्लास में नहीं खेला था ना शायद? लास्ट क्लास में खेला था ना, बस तो फिर आज तो नहीं खेलेंगे तो चलेगा, दिक्कत नहीं। ओके, नाउ यस, सो लेट मी रिपीट दिस क्योंकि आपको क्वेश्चंस को डाउट है। हाँ, टाइम पे डिपेंड करता है ना, हम सिलेबस में काफी वो चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, सिलेबस भी तो फिनिश करना है। ओके, विल प्ले, डेफिनेटली विल प्ले, कभी कभी छोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? चलो, तो ये फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही आसान प्रूफ है, फ्री के मार्क्स लेने हैं। ओके, बाकी की भी क्लास होती है ना स्टूडेंट्स, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आप ही की क्लास है, सभी क्लास का मैनेज करना है। ओके, ना सी है, समझो यहाँ पे, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं पहले सपोज ले रहा हूँ लाइन एल। ओके, आई एम टेकिंग टू लाइन्स which are parallel to this line, right? First I am taking line M which is parallel to line L, and then I am taking line N which is parallel to line L. So M is parallel L and N is parallel L. इतना क्लियर हो रहा है? Okay, so M is parallel L and N is parallel L. Now we need to construct a transversal T. फर्स्ट मैं आपके लिए एक ट्रांसवर्सल टी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सच दैट फर्स्ट अगर आपको दिया है एम इज पैरेलल एल, तो यहाँ आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन लाइन एन इज पैरेलल एल, सो अगेन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अगेन बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। So if angle 1 equal to angle 2 and angle 1 equal to angle 3, so from this can I take angle 2 equal to angle 3? And if angle 2 and angle 3 are same, can I say M and N are also parallel to each other?
because they are corresponding angles. So line M parallel line N, hence proved. चलो क्वेश्चन शुरू करें आपके मॉड्यूल के. Okay. Okay. So this is your formula book. Now let us move towards regular book. Now 9M 6.3. Okay. Now see here. आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं लेवल वन में क्वेश्चन 1 2 3 इन क्लास एक्सरसाइज. लेट मी स्टार्ट इन क्लास एक्सरसाइज. लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1. In the given figure L1 parallel L2 and L2 parallel L3, आपको L1 L2 L3 दिया गया है और एक ट्रांसवर्सल दिया गया है और x की वैल्यू आपको पूछी गई है. Okay, so let me draw that figure, or I can import that figure as well. Wait. This is your chapter number 6. I'm importing this figure, just a minute. Okay, can you see this now? Okay, चलो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है L1 parallel L2, right? In this figure L1 parallel L2, L2 parallel L3. Okay, what is the value of x? We need to find value of x. Okay, yes, very good Yashila. Right. नहीं, imaginary angles आप ले सकते हो रेफरेंस के लिए. Yes, why not? Okay, tell me students how we can proceed here. Okay, अगर L1 L2 को पैरेलल है, L3 भी L2 को पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगे? Yes or no? Right, क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगे? Please give me some response. Okay. Yes. So एडवांस क्वेश्चन भी आपके हो गए थे ना. एडवांस क्वेश्चन में बस, अरे एडवांस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दिखा लिया था, एक और क्वेश्चन में डाउट था ना शायद एडवांस में लास्ट टाइम. 9M 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डाउट था, वो दिखा दिया था. सेकंड में डाउट है क्या? ओके, सो हियर इफ L1 parallel L2 and L2 parallel L3, we can say L1 parallel L3. ओके, भले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते, फिर आपका एडवांस वाला भी देख लेंगे. सो इफ L1 इज पैरेलल टू L3, ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक अलग एंगल ले सकता हूँ. समझो, ये 40 है, ये L1 है और L3. अब L2 को मत देखो, L3 को देखो. क्या मैं यहाँ पे एक एंगल ले सकता हूँ y? Come on, what can you tell about y and 40? Right, what is the relation between y and 40? Let me take this with blue. Okay, what is the relation between y and 40? Right. So now angle y is equal to 40 degree, or only y equal to 40 degree. What is the relation? Yes, because corresponding angles. So if y is equal to 40 degree, then what about x? What is the relation between x and y? Now x plus y is equal to 180 or not? What is the reason? Very good students. Because linear pair, right? Okay, very good. Vaishnavi, Satvik, Vastav, Avaya, Janvi P, very good. Prahlad, Vikas, you all are doing great. Okay,
चलो, सो देयरफॉर अगर मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 40, सो x प्लस 40 इक्वल टू 180। इसी तरह आप रिस्पॉन्स देते रहे और अच्छा चलता रहा तो डेफिनेटली काउट खेल सकते हैं, राइट। इसी तरह रिस्पॉन्स आता रहा तो हमारे क्वेश्चन जल्दी खत्म होंगे, तो आपके लिए काउट के लिए टाइम बच जाएगा। ओके, सो इफ यू वांट टू प्ले काउट, जस्ट गिव मी रिस्पॉन्स वेरी फास्ट। ओके, और अभी आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं, अभी आप अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर, बट पहले आपको हैंड रेज करना है, आई विल गिव यू परमिशन उसके बाद। ओके, सो इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, यस, यू कैन गो टुवर्ड्स एनी मैनर, राइट। आप यहाँ पे कैसे भी जा सकते हो। जैसे अभी शिरीषा बोल रही है कि सर मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया, फिर वहां से वापस, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। ओके, तो आप किसी भी मैनर में जा सकते हो, जो शॉर्टेस्ट वे, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, नाउ वेयर वाज आई वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा है जियोमेट्री में। देखो, आपको क्लास 9 और 8 में यही फर्क है, क्लास 8 में आपका अलजेब्रा पोर्शन ज्यादा था, क्लास 9 में आपका जियोमेट्री पोर्शन ज्यादा रहेगा। तो पहले से ध्यान दो, क्योंकि अभी तो जब ट्रायंगल शुरू करेंगे तब और होगा, जो पहले से ध्यान नहीं देगा उसके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, उसके लिए डिफिकल्ट होगा, हाँ। तो इससे अच्छा है कि अभी ध्यान दो अच्छे से। फिर जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ हुआ था, यहाँ भी यही होगा फिर। ओके, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। हाँ, समझो क्वेश्चन नंबर 2। अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो बनने में मजा आएगा। हाँ, यही प्रूविंग क्वेश्चन के लिए ही। देखो, क्योंकि हर प्रूविंग क्वेश्चन में आपको याद हो तो क्लास 8 में भी मैं आपको बताता था कि आपका क्लास 9 में जियोमेट्री पोर्शन आएगा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में मेथड चेंज होगी। ओके, तो वो हर बार समझो, आपको उसका, इसके लिए आपका रीजनिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, वो सब चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। ओके, वो सब चीजें आपको बढ़ानी है कि आपको आप सोच सकना, राइट। और आपको आना चाहिए कि ऐसा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या ऐसा है तो ऐसे कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, अलग अलग तरीके से आपको सोचना है, फिर करना है। चलो, इन द गिवन फिगर रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई। आपको ऐसा दिया गया है कि रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई थ्रू सी। हमें एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू सी, विच इज पैरेलल टू लाइन बी ए। ओके, which will be your parallel to line BA. XY should be parallel to BA. Okay, चलो तो पहले XY लाइन ड्रॉ कर देते हैं। Right, suppose this is your line XY which is parallel to BA. Can you see this? Okay, next. Hence prove that angle BCD. अब आपको क्या प्रूव करना है वो समझो। Hence we need to prove that angle BCD is equal to angle ABC plus angle CDE. So angle BCD equal to angle ABC plus CDE. ओके, नाउ सोचो कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो गिवन टू प्रूव, ये सारी चीजें तो आपके लिए आसानी है इधर, आया ना। पहले गिवन टू प्रूव लिखना, डायरेक्ट प्रूफ पे प्रोसीड करें। ओके, कैन यू राइट गिवन एंड टू प्रूव बाय योर ओन? यस और नो? ओके, चलो पहले ये समझो कि आपको क्या दिया है और कहाँ पे फोकस करना है। ओके, आपको दिया गया है एक्स वाई पैरेलल बी ए। आपको जो तीन एंगल्स के बीच में रिलेशन चाहिए, पहले उन तीन एंगल्स को हाईलाइट कर दो, तीन एंगल्स को मार्क कर दो। यू रिक्वायर वन एंगल बी सी डी। कैन यू सी दिस एंगल बी सी डी? राइट। नेक्स्ट यू रिक्वायर, एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर लूंगा तो वो शायद ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन ही नहीं होगा। राइट, ओके।
वाइट वाइट ही दिख रहा है, ओके। ब्लैक भी वाइट है, ओके। सो ये आपका एंगल BCD हो जाएगा, isn't it? दिस इज एंगल BCD। देन यू वांट एंगल ABC, तो ये है आपका एंगल ABC। ओके, और यहाँ पे आपका एंगल CDE, ये आपका हो जाएगा एंगल CDE। यस और नो? सो एंगल ACD और BCD, ये आपका BCD हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ABC एंड CDE। हाँ, यस, BA इज योर रे। हाँ, BA आपको रे दी गई है। हाँ, पर यहाँ पे आप जो, हाँ, इट इज नॉट लाइन, डेफिनेटली इट इज नॉट लाइन। ओके, स्टेटमेंट में जो आपको दिया गया है, तो आप उससे लाइन बना सकते हो, राइट? मतलब जस्ट आपको उसको एक्सटेंड करना है, पीछे आप एक्सटेंड करोगे तो वो लाइन हो जाएगी, तो इट इज ओके, तो वो चलेगा। ओके, नाउ कैन यू टेल मी फर्स्ट, ओके, अगर आपका AB और XY पैरेलल है, तो उससे आप कौन से दो एंगल सेम लिख सकते हो? कैन आई से योर एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCX, isn't it? Alternate interior angles or not? हाँ या ना? ओके, एंड अगर आपका XY और DE पैरेलल है, तो एंगल CDE इक्वल टू DCX, राइट? ओके, सो हियर सिंस XY is parallel to AB, अगर XY आपका AB को पैरेलल है, so angle ABY, angle sorry ABC is equal to angle BCX, because alternate interior angles। पूरा लिखना है आपको, पूरा लिखना है, समझाने के लिए मैं बस इतना लिख रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा लिखना है। नेक्स्ट, सिमिलरली XY इज पैरेलल टू D, बट समझो, आपको बस ये दिया है कि XY AB को पैरेलल है, राइट? क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि XY AB को पैरेलल है, बट AB DE को पैरेलल है। XY भी AB को पैरेलल है, DE भी AB को पैरेलल है, तो XY और DE भी पैरेलल होंगे? टेल मी, वो पहले आपको लिखना पड़ेगा, राइट? ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये जैसे हमने पहले लिखा था, वैसे इधर आपको लिखना पड़ेगा, तो पहले वो आपको लिखना है। नाउ सिंस XY is parallel to AB and BE is, or DE is also parallel to AB, right? And DE is also parallel to AB. We can say that XY is parallel to DE, right? If two lines are parallel to same line, they both are parallel to each other. Is it clear? Please give me some response. क्या ये लिख सकता हूँ पहले स्टूडेंट्स? राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स जाते हैं। सो अब अगर XY और DE पैरेलल है, तो अब मैं लिख सकता हूँ एंगल XCD is equal to angle CDE, because alternate interior angles, right? आपको पूरा लिखना है, अभी मैं बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। चलो, अब आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS क्या है? एंगल BCD। ओके, चलो फिगर देख के मुझे कौन बताएगा पहले एंगल BCD को किस दो एंगल्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ? राइट, सी दिस इज योर होल एंगल BCD और नॉट? राइट, कैन आई राइट BCD इज इक्वल टू, सपोज इसको मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ, सो कैन आई राइट दिस एज DCX प्लस BCX, हाँ या ना? राइट, इफ आई एड DCX एंड BCX, कैन आई गेट BCD और नॉट स्टूडेंट्स? राइट, so from figure angle BCD is equal to angle BCX plus angle BCX, और CXD और DCX। okay, now BCX को आप क्या लिख सकते हो? एंगल BCX can be written as angle ABC, right? angle BCX equal to angle ABC। एंगल ABC और CD, जो आपका XCD है या DCX, दोनों एंगल आपके एक ही हैं, राइट? DCX या XCD, उसका आप लिख सकते हो CDE प्लस एंगल CDE। So therefore angle BCD
इक्वल टू एंगल ABC प्लस CDE। इज इट क्लियर? जो प्रूफ करना था हो गया। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। हैंड्स प्रूव्ड आया ना? ओके, इजी। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, थोड़ी छोटी। ओके, चलो रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सी, लाइन बी ए इज पैरेलल टू एक्स वाई। पहले इनिशियली आपको दिया गया लाइन बी ए इज पैरेलल टू डी। Now we need to plot xy through C such that xy should be parallel to AB. Okay. Now we need to prove that angle BCD is equal to angle ABC plus angle CDE. इतना हमें प्रूफ करना है। तो पहले जो हमें पैरेलल दिया गया उससे हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इट इज गिवन दैट लाइन AB is parallel to XY. So if XY is parallel to AB, can I write these two alternate interior angles are same? That is angle ABC equal to angle BCX. Angle ABC equal to angle BCX. इतना क्लियर हुआ पहले? ओके, आई होप ये क्लियर है। ओके, सो ABC इक्वल टू BCX। नेक्स्ट, अब इन द सेम वे पहले क्या मैं XY को BE के साथ पैरेलल प्रूफ कर सकता हूँ? आपको क्या दिया गया? XY इज पैरेलल टू BA। ओके, तो अगर XY पैरेलल टू AB है, AB पैरेलल टू DE है, if two lines are parallel to same line, they both lines are parallel to each other. XY parallel to DE, theorem 6.6। अगर ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे। सो CDE इक्वल टू XCD, XCD इक्वल टू CDE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ना अब एंगल BCD को आप क्या लिख सकते हो? एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCX प्लस XCD, BCX प्लस XCD और DCX। BCX को आप क्या लिख सकते हो? BCX विल बी इक्वल टू योर ABC और XCD विल बी इक्वल टू योर EDC। BCX आपका ABC, XCD का DC। यहाँ सर, यहाँ से hence proved. Is it clear now? Shall we move towards question 3? Please give me some response. Okay. Question number 3. Now can you see this figure? Question number 3. Right. आपको ऐसा दिया गया है इन द गिवन फिगर L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3। Find the measure of A, B, C, D, E. A, B, C, D और E। ओके, सॉल्यूशन। हाँ, यस। चलो तो शुरू करते हैं। सो इफ L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, if L1 parallel L2 and L2 parallel L3, then कौन सी लाइंस आप पैरेलल बोल सकते हो यहाँ से? यस याशीला?
ओके, टेल मी, अगर L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 है, सो व्हाट कैन यू टॉक अबाउट दिस? और कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. Okay, who will tell me this? This is easy question. Yes, Jayati, tell me. Jayati, unmute yourself. From parallel lines theorem, if L1 parallel L2 and L2 parallel L3, then which lines are parallel? Okay, Jayati, can you hear me? Are you sleeping? Jayati? Good morning, Jayati. Okay, I think Jayati is still sleeping. No problem. So I'm taking your answers from chat box. Okay. Okay, आहत ने तो सारे आंसर्स लिख दिए. Okay. So yes. Right. So yes. So definitely L1 parallel to L3 initially. तो आप डायरेक्टली भी जंप कर सकते हो, वैसे भी जा सकते हो. तो कौन कौन से एंगल आपको दिए गए हैं? सी है 40 एंड 85 इज गिवन. ओके, L1 L2 L3 पैरेलल है. ये दोनों लाइंस आपको नहीं दी गई हैं, इनको आप कुछ भी मान सकते हो. ओके, चलो डायरेक्टली शुरू करेंगे. चलो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं पहले. नाउ if L2 is parallel L3, if this is 40, what can you tell about A? Students, angle A क्या होगा? I'm giving you hint. This is angle A, right? Angle A or 40, just raise your hand. Okay, who will tell me? क्या रिलेशन है एंगल ए और 40 के बीच में? ओके, हाँ. So yes, angle A equal to 40 degree because corresponding angles. Very good. So let me write this. So therefore A is equal to 40 degree because corresponding angles. और corresponding angles क्यों है वो आपको लिखना पड़ेगा because L2 parallel L3. चलो A आपको 40 डिग्री मिल गया. अब A के बाद आपको कौन सा एंगल मिल सकता है? राइट, इफ A is 40 डिग्री तो कौन सा एंगल मिल सकता है? जस्ट रेज योर हैंड. इफ एंगल A is 40 डिग्री, व्हाट अबाउट ओके, कौन सा एंगल मिल सकता है? जस्ट रेज योर हैंड. हु विल टेल मी? यस, अनघा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी? Sir, Yes, tell me. sir, angle B. Angle B. How you can find angle B? What is the relation between A and B? Sir, linear pair. Very good. So here A and B are linear pair. A and B are linear pair or forming linear pair. So therefore A plus B will give you 180. Since A is 40, 40 plus B is 180. So B will give you 140 degree. Yes, you can try another method as well, right? You can try another method. Okay. Now we are having A and B as well. Now, who will tell me about C or E? Right. About C or E, which you can find first and by which method? Just raise your hand. If you are having C and E, just observe all of them, right? With the help of any one of this, which can you find first? Okay. Yes, Yashila, tell me. Sir, here L1 is parallel to L3, so L1 angle 85 degree is equal to E as their corresponding angles. Very good. Angle 85 equal to E as they are corresponding angles. Okay. So since L1 is parallel to L3, since L1 is parallel to L3, angle E equal to 85 degree.
because corresponding angles. Now, if you know value of E, tell me, can you find value of C? What is the relation between E and C? Who will tell me? Raise your hand. Tell me quickly. Yes, Raid, tell me. Raid, you can unmute yourself and tell me about how we can find C with the help of E. Sir, it is linear pair, sir. Very good, Raid. Okay, so now C plus E is equal to 180 degree because linear pair. Or you can write linear pair axiom as well. Okay. So if C plus E is 180, E is 85, what will be your value of C? C is equal to 180 minus 85 or not? So C will give you 95 degree. Or you will get C equal to 95 degree. Now you are having value of E and C both. Okay. So which angle is remaining? You are having A, B, C, E. Only D is remaining. Who will tell me about D? Okay. Who will tell me about D? Is D having any relation with any of the angle? Can you find D? Okay. Just see here, understand this carefully. Raise your hand. Yes, Navya, tell me. Sir, Yes. sir, D is 40 degree as the alternate angles. Alternate angles. Wait. D. L1 is parallel to L3, thus D is 40 degree alternate interior angle. Alternate interior angles. No, I think if you are taking L1 as parallel L3, right? And if you are taking this, so these are your exterior angles? Yes or no? Yes, sir. Okay. So, and even you are considering either L3 or you can consider either L2. Okay. So D and A, this both are your exterior angles or not? Okay, because alternate interior angles means they should form Z. Yes or no? These are your alternate exterior angles, not interior but alternate exterior. Okay. So either you can take with L1, L2, either you can take with L1, L3. Okay. Is it clear, everyone? Please give me some response. Right. You can take this with this and you can take this with this. Right. Yes, Avyaya, you can also tell me. Tell me, Avyaya. Yes, Avyaya, you can unmute yourself and then tell me. Yes, sir. You are having any other method for D? Yes, sir. We can do by corresponding angles. Corresponding angles. Okay, so first, Sir, tell me. sir, here we will take, we will find the linear pair of the adjacent angle of B. A linear pair of adjacent angle of B. Okay, great. And that angle will be similar to angle D. Yes, sir. Right? Yes, we Yes, can do sir. that. Yes, yes. So you can do so many methods, right? You can come from this to this by so many methods, right? So let us take this. Do you know about alternate exterior angles or not? Everyone know about this, right? So since L1 parallel L2, since L1 parallel L2, D is equal to A because alternate exterior angles, right? And alternate exterior angles will be always same. So just first make sure that your school is giving marks for alternate exterior angle or not. If they are not giving, then we can use other method. So since A is 40, so D is also 40 degree. Okay. Or just you need to use any two methods for alternate exterior angle. Okay.
So always try to do shorter method. So this is about your level 3. Oh, sorry, level 1, question 1, 2, 3. Now in level 2, you are having question 4, 5, 6. Let me show you all these questions today. Okay, so that from home you can try 7 questions. In your homework exercise, you are, yes, Chandan, yes. We can use some property of angle sum property of triangle as well here, right? Because with the help of angle sum property of triangle, you can find all these angles. Okay, first. But from 85, you will get here one angle. This will be your angle D. And how you will get this angle first, Chandan? ये एंगल आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बाकी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ बी सर। नहीं, वो बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, देखो वो दूर है। बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर आएगा, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे। बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका यहाँ पे आएगा। ओके, तो इधर आ सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो, बट वो बहुत मेहनत लग जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो थोड़ा। ओके, बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर आएगा, पता चल रहा है ना? हाँ, ओके सर। ओके, हाँ। विकास के पास भी लंबी मेथड है, बट अभी हम उसको स्किप करते हैं, राइट? बिकॉज डेफिनेटली अगर वो लॉन्ग मेथड देखें, उससे अच्छा हमारे नए क्वेश्चन हो जाएंगे। विल इट बी ओके विकास, और यू वांट टू से या बेटर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आंसर करो, ठीक है? तो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रन। नहीं, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, राइट? एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं है। ओके, लेट मी शो यू दिस। अगर अभी भी आपको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में डाउट है, समझो यहाँ पे ये आपकी पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता है कि ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, याद है? दिखाया था पहले क्लास में। और ये इधर होते हैं, बी और बी। ओके, दिस आर कॉल्ड योर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अलग आ जाएंगे, ये बी और ए ये आपके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, चलो अब आते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4। In the given figure, now let me input this figure for you. देखो, it is already 447. हाँ, अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है क्या? बोलो, अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार वापस दिखाता हूँ एवरीवन। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में पता चल रहा है ना? नहीं, डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, राइट? दिस इज मैथ्स। हाँ, लाइक सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, मिस्टेक्स अच्छी हैं। अभी कंफ्यूज हो जाओ वो अच्छा है, अभी कंफ्यूज होके आपका कंफ्यूजन डिस्कस करके क्लियर हो जाओ। अभी सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। Okay, now this is your question number 4, student. See this figure. Okay. यहाँ पे आपको बोला गया AB parallel CD. Here AB is parallel CD. Okay. Find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। Okay. Now tell me, can we directly find here value of x? Yes or no? क्या डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ? Definitely no, right? Right. We can extend AEC. नहीं, AEC को एक्सटेंड करना मतलब क्या होगा? मतलब आप इससे एक्सटेंड करना चाहते हो, राइट? सी, ऐसा अभी हम लेवल 1 में एक क्वेश्चन करके ही गए, जिसमें आपको एक एंगल दो एंगल का सम प्रूफ करना था, राइट? यस, एक लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी ई से, राइट? वी नीड टू ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम ई विच विल बी पैरेलल टू आइदर ए बी और सी डी, क्योंकि कोई एक को आप पैरेलल लोगे तो दूसरे को ऑटोमेटिक पैरेलल हो ही जाएगी। ओके, लेट मी ड्रॉ दैट करेक्टली। ई में से पास होते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले।
ओके, जो आपके ए बी और सी डी दोनों को पैरेलल हो। इतना क्लियर हो रहा है? उसका आप कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं उसको नाम दे रहा हूँ एफ, दिस इज योर एफ। हाँ सर, वी नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासेस थ्रू पॉइंट ई। हाँ, परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं, इससे काम हो जाएगा ना, राइट, इससे आपका काम हो जाएगा। ओके, सो सी हियर, परपेंडिकुलर से भी कर सकते हैं, राइट, देयर आर सो मेनी वेज, बट इससे हो रहा है तो इट इज गुड। ओके, तो आप समझो सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ line EF from point E such that line EF is parallel to line AB, right? Is it clear? Now since line AB is parallel to line CD, line AB और CD आपके parallel हैं, line AB और CD parallel है, तो EF CD को भी parallel हो जाएगा, right? Because EF आपने already AB को parallel लिया है, तो EF will be also parallel to CD. ओके, अब दोनों पैर को कंसीडर कर रहे हैं। चलो पहले फर्स्ट टू पेयर्स ले रहा हूं मैं, समझना। सो इफ लाइन ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल, टेल मी वहां से आपको कौन सा एंगल मिल सकता है? इफ लाइन ए बी इज पैरेलल लाइन ई एफ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन एंगल बी ए ई एंड एंगल ए ई एफ? जस्ट रेज योर हैंड। बी ए ई और ए ई एफ के बीच में क्या रिलेशन आएगा? Are they equal or supplementary? And you have to give me reason as well. Okay, क्या वो equal है या supplementary है? And you have to give me reason. BAE and AEF. Okay. चलो, yes. Tell me, Prahlad. You can unmute yourself and tell me. Please tell me. They are Yes. they are co-interior. Very good. Co-interior angles, so they are supplementary because co-interior angles. Now angle BAE is your 108 plus angle AEF. मैं यहाँ से आपका एंगल AEF फाइंड कर सकता हूँ। एंगल AEF is equal to 180. So therefore angle AEF is equal to 180 minus 108. It will give you 72. So therefore angle AEF is equal to 72 degree. चलो सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर सकते हैं EF पैरेलल CD, राइट। नाउ सात्विक, टेल मी क्विकली अब क्या करेंगे? सात्विक, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, अगर EF और CD पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं? Sir, they are supplementary. ओके, संचित कहाँ है? संचित इज एब्सेंट। अभी एंगल्स के बारे में नहीं पूछा है मैंने, वेट। EF पैरेलल CD, if EF is parallel CD then FEC, therefore angle FEC plus angle ECD is equal to 180 degree. ओके चलो FEC मैं फाइंड कर सकता हूँ अब यहाँ से। ECD आपका कितना है? 112. So therefore angle FEC equal to 180 minus 112. 10 minus 2 will give you 8. 7 minus 1 will give you 6. 68. Okay. So angle FEC equal to 68. चलो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था स्टूडेंट्स? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, isn't it? You need to find value of x. So x और इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? Who will tell me? Raise your hand. x और इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? एंगल AEF और FEC. Okay. Yes, Yashash, tell me.
now angle X is equal to AEF plus FEC, which is equal to 72 plus 68. So 8 plus 2, 10, 1, 6 plus 1, 7 plus 7, 14, 140 degree. So therefore X is equal to 140 degree. This is your final answer. Is it clear now? पता चला? आसान है? Right. Please give me some response, students. Is it clear? Okay. Easy or not? Okay, एकदम easy है. Yes, Haley, Radhika, it is clear? Okay. हाँ, अलग मेथड भी कर सकते हो. You can try so many methods. Okay, हाँ, yes. हाँ, yes, yes, yes. Easy but lengthy. Okay. तो एक फटाफट इसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रिवीजन दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन का फटाफट समझो. अच्छा, ये कहाँ से सीखा? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मैंने बोला क्या आपके क्लास में? ओके. हाँ, तो ये आपका EF हो जाएगा, राइट? तो ड्रॉ EF फ्रॉम पॉइंट E सच दैट EF पैरेलल AB और AB पैरेलल CD ऑलरेडी है, तो EF पैरेलल CD. ओके, ग्रेट ग्रेट. तो अब ये आपके पास है, तो ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री हो जाएंगे. तो 108 प्लस दैट एंगल विल गिव यू 180 डिग्री. और फिर इन द सेम वे यहाँ पे AB को एक्सटेंड करने से क्या मिलेगा? आप AB को भी एक्सटेंड कर सकते हो अक्षता, बट AB को एक्सटेंड करने से क्या मिलेगा? हाँ नव्या बता रहा हूँ, वेट. तो इसको AB को एक्सटेंड करने से क्या मिलेगा? अक्षता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. हाँ यशस, आई नो व्हाट आर यू टेलिंग, मैंने पढ़ा, बट उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना. आप ये बोलो ना, इन तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होगा. ओके. EF को बैकवर्ड एक्सटेंड किया, हाँ कर सकते हो, नो इश्यू. ओके. फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेके किया होगा, फिर अगेन वो वी कैन गेट अ ट्राइंगल. ओके. सो दिस इज द थिंग. ये दोनों को लेके पहले ये मिलेगा हाफ एंगल, फिर यहाँ पे दूसरा मिलेगा. उन दोनों को ऐड करो तो आपको मिल जाएगा. हाँ यस, यू कैन ट्राई अनदर मेथड्स, राइट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका लंबा हो जाएगा ना. समझो, आप इसे पीछे कर रहे हो, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले रहे हो, इधर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले रहे हो, तो ये एंगल और ये एंगल मिल रहा है. अच्छा, फिर 360 माइनस कर सकते हो, नो इश्यू. ओके, 112 एंड 180 चलेगा. ओके, वो भी आप कर सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये आपका 112, 108, तो इन तीनों एंगल का सम आपका हो जाएगा 360. ओके, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी मेथड का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको रिवर्स दिया गया है. ओके. ABP प्लस BDP प्लस CDP आपको प्रूफ करना है 360 डिग्री. जो ये क्वेश्चन में किया वही उसमें करना है. ओके. तो जो आप बोल रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हो. इट इज वेरी इजी. सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बस ये दिया गया है. ओके. ओके, तो वो आपका हो जाएगा. यहाँ पे आपको इन तीन एंगल का सम 360 दिखाना है, जैसे आपको हमने यहाँ पे किया, राइट? यहाँ पे आपके तीन एंगल इधर थे, तो इसी का बस मिरर इमेज आपको दिया गया है. तो यू कैन डू दिस, राइट? जैसा अभी हमने डिस्कस किया, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो जैसा अभी हमने किया, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेके भी कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है AB पैरेलल DE. आपको समथिंग ऐसे दिया गया है.
ये आपका DE है, ये आपका AB है। Okay, now AB parallel DE. Prove that angle ABC plus BCD, angle ABC plus BCD is equal to 180 plus CDE. 180 plus C कहाँ है? This is C, sorry. CDE 180 plus. तो ये भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। पहले आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे C में से, उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे पहले, राइट। आपको जो प्रूव करना है उसमें एबीसी और बीसीडी को आपको ऐड करना है, तो वो बाद में करना है ऐड, पहले एबीसी और बीसीडी। तो ये एंगल आपका जो है ईडीसी और डीसीएफ, सपोज आप इस पे एफ नाम दे रहे हो, तो ये एंगल और ये एंगल आपके सेम हो जाएंगे पहले इनिशियली। ओके, अब जब ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे, फिर आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करके देख सकते हो। तो ऑलरेडी आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 180 होगा। एंगल एबीसी प्लस एंगल BCF विल बी योर 180। ओके, अब इसमें आप एंगल F कर रहे हो, FCD एंगल ऐड कर रहा हूँ, समझना, प्लस एंगल FCD ऐड कर रहा हूँ बोथ द साइड्स। ओके, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, यही आपका मेन प्रूफ पार्ट। तो एंगल ABC एज इट इज, चलो BCF प्लस FCD क्या हो जाएगा, BCF प्लस FCD पूरा एंगल हो जाएगा BCD। ओके, ये आपका पूरा एंगल हो जाएगा एंगल BCD। टेल मी, BCF प्लस FCD, कुछ तो बोलो, राइट। इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 180 एज इट इज प्लस एंगल FCD। एंगल FCD को मैं EDC डैडी अम्मी का अकाउंट सेम कर ले तो कोर्स का टाइप कर भी तुम्हारा हो जाए। अभी डैडी का एक ही अकाउंट है मिक्स। ये कौन बोल रहा था? अफसा म्यूट योरसेल्फ। आप कुछ अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा मत करो, सारे अकाउंट डिटेल्स हमें पता चल जाएंगी, फिर टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, सब नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तो सब देख लेंगे संभल के। चलो, तो जस्ट जो का पार्ट, सो 180 प्लस EDC। ओके, अरे नो इश्यू। सो दिस इज क्लियर, एंगल ABC प्लस BCD इक्वल टू 180 प्लस EDC और CDE। तो ये आपका हैंस प्रूव हो जाएगा। इसी मेथड से आपको ट्राई करना है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? टुडेज होमवर्क इज इन फॉर्मूला बुक you need to write theorem 6.6 with proof. Okay, वो एक ही बार लिखो, आसान सा थियरम है, one time is enough. And in regular book आपको 6.3 9M 6.3 का इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क फिनिश करना है। ये तो अभी मैंने क्लास में ही करा दिया है पूरा, बस 2 क्वेश्चन बाकी है, क्लास का आप साथ में लिखते ही जाते हो ना। ओके, तो इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क ये आपको करना है। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क। हाँ, इट इज ऑलरेडी टाइम, 5 बज गए हैं, तो आज हम काहुट नहीं खेल रहे हैं। ओके, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के 7 क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो वो करा के फिर तुरंत काहुट खेलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करो कि जो आपके होमवर्क के 7 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट, वो जल्दी डिस्कशन हो जाए। सब आप पे डिपेंड करता है, जिस दिन टारगेट रीच नहीं होगा उस दिन काहुट नहीं खेल पाएंगे, समझो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अगर काउट खेलना है तो ये 7 क्वेश्चंस का डिस्कशन 10 मिनट्स बिफोर फिनिश हो जाना चाहिए। ओके, डेफिनेटली खेलेंगे काउट, डोंट वरी, राइट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैव काउट। हर क्लास में काउट की आदत मत डालो, जब भी पॉसिबल होगा हम खेलेंगे, राइट। बिलीव इन अस, राइट। तो सभी जगह मैं अभी ऐसा ही कर रहा हूँ, तो जैसा वो होगा, क्योंकि मेन चीज पढ़ाई भी करनी है ना लाइफ में, हमारे गोल भी तो होना चाहिए, वो भी तो पूरा करना है, राइट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सच अ नाइस क्लास, हैव अ ग्रेट डे। हाँ, ओके कृष्णा, वी कैन डू दैट, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, बाय।